मन चाही यमुना तीरा, यमुना तीरा मन चाही। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा। यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा मन चाही, यमुना तीरा मन चाही, यमुना तीरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा Krishna 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 Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Radha Radhikaram Radha Radhikaram Shri Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Gauranga 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 Jai Gauranga Jai Gauranga Jai Jai जय विष्णुपाद परमहंस परिवृक्षकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद एस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य डीवीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिवृक्षकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। आनंद कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री वृंदावन मायापुर द्वारका मथुरा जगन्नाथपुरी धाम की जय। यमुना मई गंगा मई की जय। वृंदादेवी भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाने जी की जय। श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ji ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for coming in the class. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। Thank you. Hare Krishna. आप पहली बार आ रहे हैं? आप तो पहले आए हुए हैं। अच्छा, हरे कृष्ण। आप भी पहली बार आ रहे हो? अच्छा, 24 लेना है। ये लूँ ना? ये लूँ 4। ठीक है, थैंक यू। वो रोहन को बोल रहे पानी की बोतल लेना चाहते हैं। हाँ, तो भगवद गीता का चौथे अध्याय का ना 24वां श्लोक करना है आज, ठीक है? तो पहले मैं एक बार बोलता हूँ, फिर पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। पहले मैं एक बार सुन लेना, ठीक है? ब्रह्म आपरणम ब्रह्मा हवि ब्रह्म अग्रो
ब्राह्मणाहुतं ब्राह्मे वेतन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वर्ड मीनिंग आप पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है। ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म ब्रह्म, हवि धृत, ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्रो हवन रूपी अग्नि में, ब्राह्मणा आत्मा द्वारा, हुतम अर्पित, ब्रह्म परम धाम, एव निश्चय ही, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम पहुंचने द्वारा, पहुंचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक, कर्म कर्म में, समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी रमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। हरे कृष्ण। तो एक बार मैं अनुवाद दोबारा पढ़ रहा हूँ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो जो लोग नए पुराने, क्या पुराने मत बोलना बिल्कुल भी, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है? तो आप ट्राई करोगे? कौन बताएगा? आप बताओ। कृष्ण भावनामृत का मतलब। और कोई? आप बताओ माता जी। भगवान में लगी हुई है। वेरी गुड। तो ये ना बड़ा मुश्किल, हाँ थैंक यू, वेरी गुड। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर वक्त भगवान के बारे में चिंतन करना, क्योंकि अब नौकरी करने जाएंगे तो नौकरी के बारे में चिंतन होगा, बच्चों को पालेंगे तो बच्चों के बारे में, खाना बनाते तो खाने के बारे में। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर जो सिर्फ कृष्ण भावनामृत का चिंतन करता रहता है वो मेरे भगवत धाम जाता है। तो कैसे जाता है वो प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य के द्वारा। यहाँ इसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। तो पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा का मतलब होता है लास्ट में आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। तो अब समझना पड़ेगा कृष्ण भावना भावित कर्म होते कौन से हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म वो होते हैं, जैसे मैं अभी पिछली क्लास में बता रहा था कि मतलब एक क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ, वो आप सच सच बताना, झूठ मत बोलना कोई भी। हर रोज हम सब मोबाइल पे रील्स देखते हैं कि नहीं देखते? जो जो देखते हैं वो हाथ खड़ा करें। तो मैक्सिमम लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते, ठीक है। अगर रील्स नहीं देखते तो फालतू में व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब
या गूगल, कहीं ना कहीं तो फंसोगे, या गेम्स। तो अगर कल बोर्ड का पेपर हो, 10th क्लास बोर्ड का, ठीक है, वो भी उस सब्जेक्ट का हो जो सब्जेक्ट नहीं आता, या बहुत टेंशन वाला सब्जेक्ट है, लाइक मैथ्स, लाइक ऐसा है, कल पेपर है और कोर्स अभी आधा रिवाइज हुआ है, आधा रिवाइज नहीं हुआ, पुराना कब करेंगे, तो सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे और रात तक भूत बन के पढ़ते रहेंगे, और रात को कब कब सोएंगे पता नहीं, है ना, क्योंकि रात को 12-1 बज जाएगा, 2 बज जाएंगे, अगले दिन पेपर भी है, तो उस दिन आपके हाथ में फ़ोन टिकेगा नहीं, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कल सुबह मेरा किसका पेपर है, बोर्ड का पेपर है, मैथ्स, जो पहले ही बंटाधार है, तो अब उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, जूते पड़ेंगे। तो आपने किसी चीज़ का प्रेशर बिल्ड किया, किस चीज़ का प्रेशर बिल्ड किया कि मेरा मैथ्स का पेपर है, इसलिए वो वाली चीज़ दब गई। तो कृष्ण भावनामृत के अंदर क्या करना होता है, अब लोग ना भगवान को ज़्यादा भक्ति क्यों नहीं करते, क्योंकि ना वो भगवान को ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड का मतलब समझते हो ना, ग्रांटेड का मतलब होता है, अब जैसे प्रभु जी योगा योगा क्लास में आप सिखाते हो या करने जाते हो, सहयोग देते हो, मतलब करते भी हो और करवाते भी हो, करते हो, अच्छा करते हो, ठीक है करते हो। अब हम योगा क्यों करते हैं, ताकि हेल्थ ठीक रहे, खाना क्यों खाते हैं, ताकि हेल्थ ठीक रहे, या भूख लग रही है तो शांत करें, सांस ऑटोमेटिकली आ रही है, नहीं लेंगे 2 मिनट नाक बंद करो तो मर ही जाएंगे, है ना, पानी पीते हैं प्यास लगती है, तो हर चीज ना एक तरह से कंपलसरी है। पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लेनी है ना, सब कुछ कंपलसरी है एक्सेप्ट भगवान के नाम के अलावा, क्योंकि भगवान के नाम में ना हमारे को कुछ एडवांटेज मिलता है, दिख नहीं रहा, कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे को 4 घंटे के बाद भूख लगेगी, 8 घंटे के बाद तो त्राहिमाम होने लग जाएगा, और 16 घंटे के बाद तो बिस्तरे पे हो जाऊंगा, यार कुछ चक्कर आ रहे हैं, है ना, पानी नहीं पियेंगे तो 4 घंटे में परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हेल्थ के लिए अभी यंग है थोड़ा सा, अगर एजड होंगे हेल्थ प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, तो योगा या एनीथिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन भगवान का नाम ग्रांटेड है, तो फिर जब भगवान का नाम ग्रांटेड ही है, ग्रांटेड का मतलब क्या हो गया कि ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कौन सा भगवान डंडा मार रहे हैं। लेकिन अगर मैंने मैथ्स के पेपर के लिए नहीं पढ़ा ना, तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मुझे डंडे पड़ेंगे। कब पढ़ेंगे डंडे, बस ये भी 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, वैसे तो कल ही पड़ जाएंगे, पता चल जाएगा पेपर खराब हुआ, कल मम्मी या पापा जूते मार रहे हो। लेकिन ये जो भगवान का नाम नहीं लिया, इसके डंडे कब पड़ेंगे, हम बोलते हैं मरने के बाद पड़ेंगे, कह रहे हैं मरने के बाद आपने सोचा है, कभी सुना है क्या होना है किसके साथ, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाओ ना, यही चल रहा होता है ना। तो अभी एंजॉय द लाइफ, बात का किसने देखा है, तो यही क्वेश्चन बच्चों को पहली दूसरी पांचवी में बोल देना चाहिए। मम्मी एक बात बताओ, 12वीं तक किसने देखा है, क्या पता हम जिंदा भी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या पता दुनिया भी रहेगी नहीं रहेगी, है ना, कुछ पता थोड़ा ना। तो अभी खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पढ़ने की भी क्या जरूरत है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं, फिर 12वीं तक सीमित नहीं रहते, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर ग्रेजुएशन तक सीमित नहीं रहते, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कंपटीशन की लड़ाई लड़ते हैं 24 घंटे, फिर नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, फिर नौकरी मिल जाती है तो पूरी जिंदगी बॉस की सुनते हैं। ये सब कुछ अनसर्टेन चल रहा है। अभी हमारे एक डिवोटी की शादी थी, तो एक सीनियर ने बोला लॉटरी लेने जा रहे हो, पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी समझ में आया ना। अब किसी को थोड़ा ना पता है कि आपके वुड बी हस्बैंड या वाइफ कैसे नेचर की आने वाली है, पता थोड़ा ना है आपको कि क्या होने वाला है, तो सब कुछ ही अनसर्टेन है। लेकिन उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए बचपन से शुरू हो जाते हैं कि पढ़ना है, नौकरी करनी है, अपने पैरों पे खड़े होंगे, फिर माँ बाप भी बोलते हैं जब बड़ा हो जाएगा ना, शादी नहीं होगी तेरी, हाँ ऐसा थोड़ा ना कोई लड़की दे देगा या लड़का दे देगा, पढ़े लिखे नहीं है तुम लोग। तो एक शादी कराने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम नर्सरी क्लास से मेहनत कर रहे हैं 25 साल के लिए। लेकिन अगले 25 साल के बाद या 40 साल के बाद जब हम मर जाएंगे, उसके बाद की कोई प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है।
तो अगर आपने हल्का सा प्रेशर बिल्ड कर लिया कि नहीं, जिस तरह से मैं खाना खाता हूँ, जिस तरह से मैं पानी पीता हूँ, जिस तरह से पढ़ाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो भगवान का नाम भी मेरे को लेना उतना ही जरूरी है, कंपल्सरी है, नॉट वो विलिंगली नहीं है, कंपल्सरी होना चाहिए। अब अगर हमारे को पता चल जाए, जैसे सपोज आप में से कोई अगर सपोज एथलीट बनना चाहता है, ठीक है, जैसे आपने टोपी पहनी है तो आपका एग्जांपल ले लेते हैं, कि सपोज आपको क्रिकेट या फुटबॉलर बनना है, ठीक है, तो क्रिकेट या फुटबॉलर बनने के लिए सुबह लेट उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा? कितना जल्दी, आइडिया? 5 भी लास्ट है वैसे तो, 4 बजे भागना पड़ता है, और 4 बजे उठ के बेड पे पड़े रहेंगे या क्या करेंगे? एक्सरसाइज, भागना पड़ेगा बहुत ज्यादा। कब तक? हाँ, मतलब हमारे को बड़ी जबरदस्त, क्योंकि अगर हमारे प्लेयर बनने का मूड है तो 2 3 4 5 घंटे फिर शाम को भी ऐसे करना पड़ेगा। तो हमने पूरा प्रेशर दे दिया कि एक मेरे को क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा, लाख लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अनसर्टेनिटी है ना, लेकिन मैं अपनी जान तो पूरी मार रहा हूँ। तो क्या हम भगवान के लिए सुबह नहीं उठ सकते? लेकिन वही वाली बात है, क्रिकेट खेलना है तो 10वीं के बच्चों को भी ना माँ बाप बोलते हैं भैया तेरे को क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलवाया, पैसे फूकने के लिए नहीं दिलवाया, चल उठ और भागना शुरू कर, नहीं तो एकेडमी से बाहर निकाल दूंगा। कभी किसी माँ बाप ने 10वीं के बच्चे को बोला कि बेटा सुबह 5 बजे उठ जा, भगवान का नाम ले? शायद कोई नहीं बोला, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी नहीं बोला उनको। हाँ प्लीज। देखा, ये कैसे आना शुरू हुआ? ये तो हम कृष्ण भावनामृत में आए तो ये शुरू हुआ ना। तो भक्तों का संग मिला तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ट हुआ कि नहीं करनी है माला, नहीं क्लास में जाना है, भगवान को भोग लगाना चाहिए, संडे की क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो वो अपनी जिंदगी के अंदर आने लग गया। कैसे आने लग गया? जब भक्तों का संग मिला। हाँ, जैसे पहले तो मुझे ऐसी आदत थी, जैसे सारे घर की 6 बजे उठते थे, ठीक है, उसके बाद जैसे प्रभु परमानंद जी है ना, हाँ, मतलब उसकी वीडियो जैसे रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे आ गई तो मतलब कि देखने लग गए, फिर मतलब उनकी जैसे तो आदत सी हो गई है, अब नहीं देखते। तो जब से मतलब 1 मंथ हो चुका है मुझे, मैं 5 या 5:30 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद प्रभु का नाम लेता हूँ, ठीक है, मतलब आधे घंटे, मतलब पहले मैंने ट्राई किया, जैसे जब मेरे 10-15 दिन हो चुके, उसके बाद मैंने जैसे मम्मी के साथ करना शुरू कर दिया। मम्मी अब तू खड़ी होएगी, ठीक है, स्टार्टिंग में तो मम्मी ने कुछ मतलब कि क्यों झूठी कर रहा है मुझे ऐसे वैसे, लेकिन अब ऐसा है कि मम्मी अपने आप खड़ी हो जाती है और प्रभु का नाम लेने लग जाती है। पर ये भी ना, अब 1 मंथ हो चुका है, मतलब तो उठना है और सुबह भगवान करना। लेकिन ना अब प्रॉब्लम पता है कहाँ है? आप बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है हमारे को ना प्रभु का नाम भी नहीं पता वैसे तो। बस थोड़ा ये लेते हैं कृष्णा कृष्णा। नहीं, वो आप अच्छा ले रहे हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा संगत मिली, उन्होंने बोला, अब जैसे आप बंगाल में जाओगे तो काली माता की पूजा होती है, ठीक है, कहीं और जाओगे तो भैरव बाबा की पूजा होती है, वहाँ पे बोलते हैं शराब भी चढ़ाना चाहिए, कई जगह बकरे की बलि दी जाती है। ऐसे इंडिया में तो एंडलेस भगवान है, तो अपने को तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि भगवान ही कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि कोई कृष्ण भावना में, तो मैं ना हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ कि अपने दादा परदादा पे चले जाओ। सोचो कि जब वो सुबह मिलते थे तो क्या बोलते थे, जब सुबह सो के उठते थे तो क्या बोलते हैं? राम राम। तो जो हमारा कल्चर चलता आ रहा था उसमें कोई कुछ नहीं था एक्सेप्ट राम के, और राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। जैसे जन्माष्टमी मनाते थे, सगुन जन्माष्टमी हम बचपन से ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं रामनवमी के। रामनवमी आज भी कम बनती है, अच्छे से नहीं। जन्माष्टमी भी तो ऐसा होता है, तो हम बचपन से नहीं, हमारे परदादा तक से लोग जन्माष्टमी मनाते आ रहे थे। तो अब राम और कृष्ण की जगह रिप्लेसमेंट होने लग गई है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया। प्रभु प्रभु पता नहीं कौन से प्रभु है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ इसका वर्णन होता है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत व आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो अगर भगवान की
कृष्ण में रहेगा पूरा टाइम, उसका जो लास्ट रिजल्ट है वो आध्यात्मिक होगा। तो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, हम पूरा टाइम कैसे रह सकते हैं? अब में से कोई बताएगा पूरा टाइम कृष्णमय कैसे हो सकता है? ये स्टैंड तो नहीं आ गया? नहीं, नीचे स्टैंड तो नहीं टकराएगा टेबल पे? ठीक है, कोई बताएगा 100% कृष्णमयी कैसे हो सकते हैं इसमें? वो आपकी बात सही है, लेकिन ना अच्छा अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? आपने तो थियोरेटिकल आंसर दिया, लेकिन जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है? तो ये 100% इसका ध्यान फुटबॉल में होगा, ठीक है? कोई इधर से भाग के तो नहीं आ रहा है इधर में, चाहे वो पहले थॉट अगर फिलॉसफी समझ भी ले कि हाँ भाई कृष्ण के लिए खेल रहा हूँ, जबकि कृष्ण के लिए तो खेलना नहीं है फुटबॉल, है ना? तो फिर वो कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको एक आंसर बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको डिजेस्ट हो या ना हो। जब आप भक्तों के साथ उठते बैठते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं आपको, जैसे सेवा मिल गई, है ना? जैसे हरिनाम मिल गया, कुछ बोलेंगे रीडिंग करो, कुछ बोलेंगे कथा सुन लो, कुछ बोलेंगे कीर्तन करो, कोई बोलेगा खिचड़ी बांट के आओ, कोई बोलेगा बर्तन मांज लो, कोई बोलेगा अच्छा ये कर लो। अभी जैसे जन्माष्टमी फेस्टिवल आ रहा है, तो बहुत सारी सेवाएं होंगी। तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप सब लोग ओके बोलोगे, देखना। अब सपोज आप जन्माष्टमी वाले दिन आए, आपने हमारे से पूछा प्रभु जी कब से सेवा है? मगर जन्माष्टमी के 3 दिन पहले सेवा शुरू हो जाएगी, कथा है, ये है, वो है। अब बोलोगे जी 3 दिन पहले तो नहीं, जन्माष्टमी वाले दिन आ जाओ। हमने कहा हाँ आ जाओ। कह रहे कितने बजे आऊँ? कहना हमारे यहाँ तो 4 बजे, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी, रात के 1 बजे तक चलेगी। कह रहे अच्छा इतना? नहीं मैं 6 बजे आ जाऊँ। हमने कहा हाँ 6 बजे आ जाओ। फिर मैं रात के 10 बजे चला जाऊँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ना सर खुजलाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। सही बात है ना? एंडलेस सेवा आएंगी। तो वो सेवा किससे रिलेटेड चल रही है? कृष्ण से रिलेटेड चल रही है कि उनके भक्त आ रहे हैं उनके बर्थडे पे, उनके लिए कारपेट बिछवा रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई फ्रूट काट रहा है, कोई जन्मामृत बना रहा है, कोई दे रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है। ये था प्रैक्टिकल कृष्ण में योजना, कि आपके पास दूसरा थॉट ही नहीं है सोचने के लिए। अब बोलो प्रभु जी फिर हम, चलो ये तो जन्माष्टमी का एग्जाम्पल आया, उन्होंने बोला ना अंतोगत्वा तब भगवत धाम मिलेगा। तो डेली लाइफ में कैसे होगा? देखो होगा, अभी बताता हूँ। आप जॉब करते हो, आप भी जॉब करते हो, ठीक है? स्कूल कितने बजे जाते हो आप? 7 बजे। आते कब हो? 2:15। अब 2:15 आके आपको खाना वाना बनाना पड़ता होगा, ठीक है? फिर बच्चों को भी देखना पड़ता होगा, और सुबह जल्दी भी उठना पड़ता होगा, कम से कम 5 बजे तो उठना ही पड़ता होगा, ठीक है? अब इनका शेड्यूल तो समझ लो, 5 बजे उठा है, स्कूल भी जाना है, सुबह भी खाना बना के जाना है, ठीक है? उसके बाद आना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होगा, थोड़ा थके हुए हैं, मतलब एक एक मिनट नपा तुला होगा अब, है ना? तो रात के 10 बजे तक तो आप टूट जाओगे, आप तो मतलब जो भी मतलब थक जाओगे, सो जाओगे। अब ऊपर से बोल दिया जाए कि यार माला ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, 16 माला करो, है? फिर डेली 1 घंटा रीडिंग भी करो, 1 घंटा श्रवण भी करो। आप बोलोगे प्रभु जी ये रहा मेरा टाइम टेबल, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शेड्यूल पूरा है, इसमें मैं अभी इसमें मैं 8 माला ही कर पा रही हूँ, ठीक है? और आधा घंटा रीडिंग कर रहा हूँ, आधा घंटे शो, इससे ज़्यादा तो टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा माता जी कोई बात नहीं, आप प्रयास करो 4:30 बजे उठने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधा घंटा तो हो जाएगा। तो 4:30 उठने लगे, 3-4 महीने 4:30 उठ गए। कह रहे प्रभु जी अब 12 माला हो जाती है, लेकिन 16 तो अभी भी नहीं हो रही। मैं कहूँ कोई बात नहीं माता जी, अब 3-4 महीने से 4:30 उठ रहे हो, अब 4 बजे उठ जाओ, तो आप 16 माला कर लो। अब 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बीच में 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, 1 मिनट भी नहीं है। जो टाइम बचा आपके दिमाग में चल रहा है मेरी माला रहेगी, माला पूरी होगी तो दिमाग में चल रहा है यार रीडिंग तो करी नहीं, रीडिंग पूरी होगी तो लगे यार श्रवण तो किया नहीं। स्कूल से आओगे तो सोचोगे यार टाइम वेस्ट करने से बचाऊं कैसे करके, आज की रीडिंग करनी है। तो ये पूरा कृष्ण भावना है, यानी कि अपने हर मिनट का हिसाब। तो जब आपके पास टाइम ही नहीं होएगा, तो आप प्रजल्पा से बच जाओगे। प्रजल्पा का मतलब क्या होता है? आलतू फालतू की बातें, मोबाइल फ़ोन, टीवी,
आप 99% का एक्सपीरियंस होगा, करते नहीं करते वो नहीं मैं कह रहा, कि जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं, जब हम वेले बैठे होंगे तो चल किसी दोस्त से मिलो, और क्या चल रहा है यार, सब बढ़िया चल रहा है, और अब क्या और बोल तो दिया बढ़िया चल रहा है, होता है ना, 4 बार तो और पूछ लेते हैं, तो ये प्रचलित है। कोई काम है तो जरूर फ़ोन करो, या हाल चाल भी पूछना है, और भाई सब ठीक है, हाँ सब, कुछ खास नहीं, चल ठीक है बाय, हरे कृष्ण। तो फ़ोन 30 सेकेंड्स में ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो 30 सेकेंड्स के कितने मिनट होते हैं पता नहीं चलता। तो ये सब प्रजल्प है। कई लोग बोलते हैं ना, मैं फ़ोन पे नहीं रहती या नहीं रहता, या मैं गेम्स नहीं खेलता या खेलती, तो भैया उनके और मूड है, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, या वो खाली बैठ के सोच ही रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। वो भी टाइम वेस्ट है, वो भी प्रजल्प है, क्योंकि इसमें कृष्ण नहीं है, इसमें कृष्ण नहीं है। हाँ, लेकिन आप भगवान की फोटो के आगे बैठ के सोच रहे हो ना कि भगवान की पैर कितने सुंदर है, पाजेब देखिए है भगवान की, अरे भाई साहब तो गोल्ड की पहनी हुई है, लेकिन ऊपर तो सिल्वर ज्वेलरी पहनी हुई है, ये मैचिंग नहीं बन रही है। अब भगवान के बारे में चिंतन करो, तो भगवान की ड्रेसेस देखो, वो देखो उधर देखो, अगर ऐसी ड्रेस कोई पहन के सड़क पे आपके सामने आ जाएगा ना, आप बोलोगे पागल आदमी है। सच में, ऐसे मुकुट पहन के आ जाए आपके सामने, ये भगवान को पहचान नहीं सकते हम, नेक्स्ट टाइम बहुत, पर ऐसे लगेगा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जब हम फोटो देख के भी चिंतन करेंगे ना, यार कैसे कॉम्बिनेशन है, बनाने वाले की भी दाद देनी पड़ेगी, कैसे पल्ला ऊपर कर रखा है, क्या है, कितने फूल लगाते हैं भाई साहब, इस पे थिंकिंग कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे थिंकिंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो मैं एक हमेशा डायलॉग बोलता हूँ, प्यार किया नहीं जाता। तो ऐसे प्यार, भगवान को प्यार भरी नजरों से देखते रहेंगे तो भगवान से प्यार हो जाएगा। तो भगवत गीता का एक श्लोक है, ये यथामाम प्रपदन्ते, यानी कि जैसा आप रेसिप्रोकेट करोगे वैसा आपके साथ होने लग जाएगा। अब सोचने लग जाओ फालतू में, अर्थक्वेक आएगा तो हमारा घर गिर गया, तो मैं सड़क पे गिरूंगा या पटरी पे गिरूंगा? सड़क पे गिरा तो हड्डी ज्यादा टूटेगी, पटरी पे गिरा तो बच सकते हैं, लेकिन अगर घर टूट गया, कर लो, क्या क्या लॉजिक बन रहा है इसका? थिंकिंग करनी है तो कुछ पॉजिटिव कर लो ना। तो ये सारा सब कुछ प्रजल्प है, टोटल प्रजल्प। तो आपने सारा काम करा, आपने ऑफिस गए, आपने बच्चों को पाला, आपने रोटी बनाई, वो वाली बात तो सही है कि हर एक को सेंटर में कृष्णा रखना है, लेकिन हर चीज के पहले सोच रहे हो कि यार रोटी बनाने में 15 मिनट लगने हैं, 15 मिनट का 16वां मिनट नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि भैया मेरी माला रहती है, मेरी रीडिंग रेडी है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर रखी है, अपने ऊपर बर्डन ले लिया, नहीं मेरे को रोज इतनी माला करनी है, मेरे को रोज रीडिंग करनी है, मेरे को संडे को यहाँ पे आके सेवा भी करनी है, मुझे यहाँ पे प्रसाद बनाना है, झाड़ू मारना है, क्लास भी अटेंड करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। अपने आप को थोड़ा सा ओवर बर्डन करोगे तो फिर देखना कृष्ण रिवील करेंगे अपने सामने। आगे क्या लिखा है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस वातावरण में ग्रस्त है, ग्रस्त का मतलब समझते हो ना, उसी से क्या बोलते हैं उसको, ग्रस्त है, अफेक्टेड, अफेक्टेड। तो जिस वातावरण से अफेक्टेड है, तो बद्ध जीव को भौतिक, अब जैसे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बात बताओ प्रभु जी, मैं तो कृष्ण कृष्ण करता रहता हूँ, लेकिन ऑफिस में मेरे साथ की, जैसे आप ही ऑफिस, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप स्टाफ रूम में बैठोगे, और भी लेडीज बैठेंगी, वो थोड़ा ना कृष्णमयी हो जाएंगे, वो तो बोलेगी मेरी सास ने ये कर दिया, वो कहेंगे मेरे बच्चे बात नहीं मानते, फिर वो बोलते हैं जी पैसे की किल्लत हो रही है, मेरा हस्बैंड शराब पी के आता है, मेरी बहू ने मेरे को मार, ऐसी बातें होंगी नाजमी, अगर खाली बैठोगे तो होंगे। आप बोलोगे मैं कैसे बच सकती हूँ, क्योंकि कान में तो जा ही नहीं है ना। तो कैसे बचना होता है, ऐसे बचना होता है कि संग लेना नहीं चाहिए, संग देना चाहिए। आपको पता चल गया सबका नेचर, तो अब आपने क्या बोला, आपने सौंफ मिश्री का भोग लगाया, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी जाते साथ देखा, आज ना मैंने ठाकुर जी का ये भोग लगाया था, और फिर अब
इससे पहले वो शुरू आप ही हो। उनको पता है आपको ठाकुर जी को ना मिश्री बहुत पसंद है। कोई बोल देगा हमेशा मिश्री खाएंगे, अरे हाँ ये यशोदा जी रोज वो खिलाती थी, क्या मक्खन मिश्री खिलाती थी। फिर कोई ना कोई कहानी बता दो, कृष्णा बुक तो पढ़ते ही होगे, ये कैसे ये कितना मक्खन चोरी करते थे भगवान। आप छोड़ दो शव गुफा, कोई ना कोई तो फंसेगा, वो फंसेगा, वो क्वेश्चन एयर करेगा, आप आंसर दोगे। जिसने कटना है वो कट के साइड हो जाएगा, जिसने टिकना है वो बैठा रहेगा। और ये प्रैक्टिकल हुआ है। मैं जिस भी शादी पे जाता था, जाना तो पड़ता है, गृहस्थ में है, तो मेरे से लोग हाथ मिलाते हैं और क्या चल रहा है, मैंने कहा जी यही चल रहा है। अच्छा इसके अलावा, मैंने कहा भाई इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भगवद गीता पे चलती है, भागवतम पे चल रहा है, इस बार जन्माष्टमी, बस बात करी, वो बंदा कट लिया, कह रहा ये तो शुरू हो गया। दूसरा खड़ा हुआ, तो अब 2-4 सालों में सबको पता चल गया कि यार यही वाली बात करेगा। अब मैं आराम से पीछे अरे चेयर पे बैठता हूँ, सबसे नमस्ते करता हूँ, फ़ोन खोल लेता हूँ, भगवद गीता या भागवतम पढ़ रहा होता हूँ, शादी में भी पीछे बैठ कर, शायद दिमाग में एक शब्द न जा रहा हो, लेकिन मैं तो ट्राई कर रहा हूँ ना। तो सबको पता चल गया इसका नेचर, क्योंकि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, जिसका नेचर हमारे नेचर के साथ मिलता है वही तो बैठेगा हमारे साथ, बस। तो हमने अपनी संगति देनी है, नहीं तो हम तो चाह रहे थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है भैया, आज की रीडिंग रहती है, शादी पे जाना पड़ा था, कर लेते हैं, कर लेते हैं। नेक्स्ट, भौतिक कलमश से ग्रस्त बदजीव तो भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। क्या लिखा है, निकलना ही होगा। देखो मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल थ्योरी। मैं शादी पे जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ ताकि सबको लगता है ये आया हुआ है, उसके बाद मैं नीचे उतर जाता हूँ बैंक्वेट हॉल से, गाड़ी में बैठ जाता हूँ या वॉक पे चले जाता हूँ, माला गाड़ी में रखी होती है या काउंटर होता है एक्स्ट्रा माला के लिए, आराम से 1 घंटा वॉक करके आता हूँ, 8 माला एक्स्ट्रा हो जाती है। फिर शादी से सबका जाने का टाइम हो जाता है, ऊपर चढ़ता हूँ, सबको लगता है अभी तक रुका हुआ है ये, कहता हाँ बहुत मज़ा आया, सब बढ़िया था, कितना अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, थैंक यू, चलो जी हरे कृष्ण, वापस आ जाता हूँ। मैं शादी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट पहले और आखिरी के 5-10 मिनट होता हूँ, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं होता। तो वो तो तरीका आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये तो मेरा तरीका है। अब जो लेडीज़ होती हैं वो नहीं निकल सकती, आदमी तो फिर भी निकल जाएगा, तो वो तरीके अपने आप को इन्वेंट करने हैं कि आपको क्या तरीका सूट करता है। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भाव। देखो वही चीज आ गई ना, देखो ध्यान से सुनना क्या लिखा है, जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, आ गया बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला। आपको देखना है कौन सी विधि, आपको देखना है कि मेरे को कृष्ण भावनामृत होना है, मैं कैसे हूं। इस तरह से वो विधि ढूंढोगे तो 100% मिलेगी। जैसे पढ़ने वाले बच्चे को ना, जो पढ़ने वाला है उसको पता है कि कैसे पढ़ना है, जिसने नहीं पढ़ना ना, वो एक कहावत बनी हुई ना, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब जिसने विधि ढूंढनी है ना, तो भगवान उसकी बुद्धि ऐसे डेवलप कर देगा, तो उसको सब तरीके पता चल जाएंगे कि भाई कैसे होना है, क्या होना है, लाइक दिस। मैं हमारे सर्कल में तो बहुत सारे होते हैं, मैं माताओं की बात बता रहा हूँ, शादी भी होती हैं, जिनको लग रहा है यार टाइम वेस्ट होने वाला है, वहाँ तो कुछ बच भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, एज ए लेडीज़ कहाँ घूमेंगी वो, एक कान पे ईयर प्लग लगा लेती है, ठीक है, मोबाइल पे कुछ खोला, कोई आता है कहना यार ऑफिस की मीटिंग है मैं थोड़ा सा अटेंड कर लूँ, हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं, मीटिंग मीटिंग हो रही होती, वो अपनी विधि ढूंढ ली। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, तो दूध से बनी अन्य वस्तु है तो देखा जाए दूध, लेकिन दूध से प्रॉब्लम है तो दही, तो तरीका तो आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढो, ये भगवान ने बुद्धि सबको दे रखी है। भौतिकता में ग्रस्त बदजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है। अब देखो मैंने अभी एक लाइन बताई थी पिछली क्लास में, दोबारा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
अगर कोई अपनी जिंदगी में कृष्ण को लाना चाहता है, आप में से कौन कौन लाना चाहता है अपनी जिंदगी में कृष्ण को? सब, वेरी गुड। लेकिन आ तो रहे नहीं है, ट्राई तो कर ही रहे हैं, है ना, कोशिश तो कर ही रहे हैं, हर कोई अपने अपने प्रयास तो कर ही रहा है। तो लगता है यार अभी मंजिल बड़ी दूर है, बहुत ही दूर है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कितनी दूर है। तो प्रॉब्लम आती है, अगर आप मंथन करो तो प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ना मेरे ग्रस्त लाइफ में पंगा, ये ऑफिस में पंगा, ये मेरे अनर्थ, ये मेरे पाप, ये मेरे अपराध, ये इतनी टेंशन दिमाग में, क्या इतनी सारी चल रही है, पूरा हाथ भरा हुआ है। अब इस लाइन को छोटा करने की कोशिश करोगे ना, होएगी नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको लाना किसको अपनी जिंदगी में? कृष्ण को। तो कृष्ण को धीरे धीरे बड़ा कर देना, माला, रीडिंग, भक्तों का संग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बड़ा, इसको बड़ा करते जाओ, इतना बड़ा करो कि ये तो यही है, ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये दब जाएगा, इसको छोटा नहीं कर सकता। यानी कि कोई बोले इस फोन को छोटा कर दो हाइट में, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर कोई ऐसा फोन आए जिसकी हाइट इतनी बड़ी हो, तो मैं साथ में ये रख दूंगा, मैं देखा फोन छोटा हो गया ना, हाँ यार, क्योंकि कंपैरिजन हो गया। तो हम अपने अनर्थों को, पापों को, अपराधों को, प्रॉब्लम्स को कम नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग है भैया। किसको कम करने के चक्कर में हो, ये खत्म हो जाएगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा चार और आ जाएंगे, नहीं होंगे कम। इसको बड़ा कर दो, ये लाइन बड़ी खींच दो, ये छोटी लगने लग जाएगी। और ये कृष्ण की लाइन है, तो कृष्ण आपको इतनी शक्ति दे देंगे इसमें दब जाए। तो करना ही है, हम लगे रहते हैं इसको छोटा करने में, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, भौतिकता में ग्रस्त बदजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप तो अच्छी रीडिंग करते हो, आप भी पढ़ते हो भगवत गीता रोज? रोज पढ़, कौन से अध्याय में पहुंच चुके हो? नहीं, शुरू से करो, भूमिका से शुरू, स्टार्टिंग पृष्ठभूमि से, नॉट श्लोक। जो ये लिखा है ना भूमिका, भूमिका से पहले अमुख, अमुख से पहले पृष्ठभूमि, यहाँ से शुरू करनी है। हाईलाइटर लेकर कि आराम आराम से पढ़ो, कि सोचो ना मेरे को आधा घंटा ही पढ़ना है, पर पढ़ो आराम से, चाहे 1 पेज ही हो, ठीक है, भागना नहीं है। जो लगे कि मेरी जिंदगी के लिए फिट बैठता है उसको अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन करो। तब भगवत गीता रिवील करेगी, क्योंकि भगवत गीता के अंदर वो सारा कुछ है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन उसको चबाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको जेन्युइन पनीर खाने को मिले, मतलब प्योर, तो वो हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा? हेल्दी होगा ना। लेकिन आपने क्या किया, पनीर लिया 50 ग्राम, सीधा मुंह में ठोस लिया और उसको निगल गए, तो वो फायदा करेगा नुकसान करेगा? क्योंकि बोला जाता है चबा चबा के खाना चाहिए, नहीं तो वो अंदर तो ऐसे पड़ा रहेगा, फिर सड़ जाएगा, अगले दिन टॉयलेट में बाहर निकल। था तो वही पनीर, लेकिन आपने उसको, अब कुछ पनीर का तो फायदा होगा जो बॉडी को थोड़ा बहुत चाहिए, पूरा फायदा नहीं दे पाएगा, है ना, क्योंकि जो पूरा चबा चबा के देना चाहिए था वो फायदा नहीं मिला। भगवत गीता उठाने से फायदा मिल जाता है, पढ़ने से भी फायदा मिलेगा, लेकिन अगर चबा चबा के पढ़ोगे, यानी कि ध्यान से पढ़ोगे, तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। फिर क्वेश्चन निकलेगा, उसका आंसर पूछोगे तो और फायदा मिलेगा, फिर उसका पर्सनल एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ये मेरी जिंदगी में कैसे फिट होता है, तो और फायदा मिलेगा। और एक आम आदमी कहे, एक बात बताओ भाई, भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध कर, और मैं थोड़ा युद्ध करूंगा, मैं तो भैया दुकानदार हूं, मेरे को युद्ध क्या करना है? फिर उसको समझाएगा भैया तेरे लिए युद्ध क्या है, दुकानदारी युद्ध है, क्योंकि तेरे लिए स्ट्रगल है, सुबह से लेकर रात तक बैठना है, इसमें भगवान का नाम याद कैसे करूं, सुबह कैसे उठना, क्या खाना क्या खाना, तो तेरे लिए युद्ध क्या है? वही युद्ध है, हम सबके लिए युद्ध है ना। जैसे हम बच्चों को पढ़ाई मुश्किल है, उनके लिए युद्ध वो हो गया। तो हमारे को इस तरह से सोचना चाहिए। जो यहाँ भगवत गीता में दिया गया वह विधि यज्ञ या विष्णु को कृष्ण प्रसन्न करने के लिए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही
अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। क्या लिखा है? पूर्ण तल्लीनता से। अब हम माला भी पता कैसे करते हैं खत्म करने के लिए? हम सब कुछ कैसे करते हैं? ड्यूटी समझ के कर लेते हैं। और अभी मैं पिछली क्लास में बता रहा था डिटेल। डिटेल का मतलब आपका नाम भूल गया, आपका नाम बताना नहीं, इनका आपका नाम भूल, सिमरन। डिटेल का मतलब, डिटेल का मतलब क्या होता है? हाँ, पूरा खोल के एक्सप्लेन करके। तो डिटेल का हिंदी नहीं, डिटेल का मतलब क्या हुआ? ये तो हिंदी बताई ना। अच्छा चलो एक बात बताओ, पूर्ण व्याख्या हम किसकी करते हैं, या डिटेल या एक्सप्लेन किसको कर सकते हैं? जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। जैसे सपोज मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, जैसे मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, बस यही मैं बोल सकता हूँ भाई हर संडे को आता है, थोड़ी देर क्लास में बैठता है, थोड़ी देर खेलता है, मस्ती करता है, चला जाता है। यही है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम बता दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बता दूंगा, पूछूंगा याद रहेगी, तो इसके ज़्यादा तो नहीं पता। लेकिन आप तो सब कुछ बता सकते हो इसके बारे में, क्योंकि आप इसको प्यार करते हो, क्योंकि ये आपका अपना है। हम दुनिया के बच्चों को बोलते हैं सारे बच्चे, लेकिन उसके बारे में बता तो नहीं सकते ना। बता तो अपने बच्चों को बता, बेटा ये मत खा, तेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, बेटा ऐसा जूता मत पहन, तेरे पैर पे चोट लग जाती है। इलेबोरेट कब, इलेबोरेट या एक्सप्लेन का मतलब, ये डिटेल का मतलब होता है लव। जिसके साथ प्यार है उसी के साथ डिटेल है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं समझाता हूँ। आप किसी भी मंदिर में गए होगे, खासकर इस्कॉन के मंदिर में, जैसे इस्कॉन वृंदावन, आपने कृष्ण को देखना कभी, तो उनके ना आंखों के पास यहाँ पे डिजाइन बनाए जाते हैं। तो क्या वो ऐसे धब्बे मार दिए, या एक चीज को सोच समझ के लगाया गया कि कैसे अच्छा लगेगा, कैसे सुंदर है, क्या डिजाइन बनाए होता है? तो डिटेल में जाते हैं वो कि कैसे अच्छा लगेगा, बिंदु मोटी अच्छी लगेगी, छोटी अच्छी लगेगी, कहाँ मोटी लगेगी, कि ऐसे घुमाएं या ऐसे गोल करें। एक एक डिटेल में जाते हैं। पजेब को कैसा रखें, थोड़ी ऊपर थोड़े नीचे, उनकी धोती ऊपर कितनी करनी है, नीचे कितनी करनी है, पटका हवा में कितना रहना चाहिए, नहीं ज्यादा हो रहा है कम। 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लग जाता है भगवान को तैयार करने में। एक एक चीज माइन्यूटली दिखाई जाती है, एक एक चीज। इस्कॉन के मंदिरों में तो एक एक चीज, इवन फ्लावर तक। तो तभी यहां लिखा है पूर्ण तल्लीनता से। तल्लीनता का मतलब क्या हुआ? पूरा मगन होकर। क्या हम में से कोई भी बंदा कृष्णमयी एक्टिविटी पूर्ण मगन होकर करता है तो प्यार होगा, तब हम डिटेल में जा पाएंगे। अभी हम डिटेल करते नहीं, अभी हमारे टेंशन होती है 4 बज के कब ऑफिस जाना है, कैसे माला करूं, कैसे भोग लगाऊं। फिर दोपहर को आते हैं, यार इतना थके हुए हैं, रोटी बनानी है, भोग कैसे लगा सकते हैं भगवान, और भोग लगाने जाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री बसवादी को खा लो यार, मैं तभी खाऊंगा, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। टाइम पता किसके लिए होता है? जिससे प्यार होता है, उसके लिए टाइम। तो हमारा प्यार डेवलप ही नहीं हुआ, तो को प्रभु जी अच्छा प्यार डेवलप नहीं हुआ तो करें क्या? हम करना चाहते हैं लेकिन डेवलप नहीं हो रहा, ये भी क्वेश्चन बनता है ना। तो बोलो रो, क्या रोना आता नहीं? सही बात है ना। अब बोलो भगवान के लिए रो, तो रोना तो नहीं निकलेगा ना, ऐसे रोना शुरू हो जा, रोना कैसे निकलेगा, ऐसे तो हंसी निकल रही है। तो रोना नहीं निकलता, इसके लिए रोना पड़ेगा। अब इसके लिए भी नहीं रोना आता तो उसके लिए रोना पड़ेगा, उसके लिए भी नहीं आता तो उसके लिए रोना पड़ेगा। तो भगवान के सामने खड़े होकर ये बोलना, भगवान भगवान मेरे को तो आपके लिए रोना तक नहीं आ रहा, मैं कितना ढीठ हूं। मैं कह रहा हूं मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे पता ही नहीं है कि आपको भूख लगती है, मुझे पता ही नहीं है कि आपको कब कौन सा कपड़ा पहनाना है, मुझे पता ही नहीं है कि कब आपके साथ उठना बैठना, कैसे बात करूं, मुझे कुछ नहीं आता भगवान। उसके बाद में मैं हंस रहा हूं, क्योंकि डिटेल तो है ही नहीं कहीं। तो वो डिटेल कहां से आएगी? वो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे भक्तों के माध्यम से। भगवान खुद तो चल के आएंगे नहीं। एक कहानी मैंने आपको सुनाई है, दोबारा सुनाता हूँ। हाँ अब खुश हुआ ये,
इसका नाम भूल गया। बुद्धव, बुद्धव आपका माधव बोला है तो माधव बुद्धव, उद्धव तो बहुत अच्छा नाम है। निश्चय, डिटर्मिनेशन। कहानी है उस भक्त की जो भगवान की सेवा करता था, और ऐसी सेवा करता था कि भगवान उससे बात करते थे। ठीक है, जैसे भगवान को भोग लगाने गया तो भगवान ने थाली रखी, भगवान ने उससे बात करी, क्या क्या लाया है? कह रहे भगवान दाल है और पनीर है। कह रहे पनीर क्या भुर्जी लाया? कह रहे नहीं, मेरा तो गीला खाने का मन था। कह रहे अच्छा रुको मैं लेके आता हूँ। तो दोबारा सब्जी बनाएगा, वो गीला पनीर लेके आएगा। ऐसे बात करता था वो, और फिर लगाता था। फिर चावल करता था, वो कह रहे यार तेरे को पता नहीं चल रहा है यार, एसी चल रहा है, चावल भी कर रहा है, ठंड लग रही है, थोड़ा हल्के है। ऐसे बात करते थे। तो वो कौन था भक्त? कांचीपुरम। और भगवान थे वृद्धराज। भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे जगन्नाथ, जैसे राम, कृष्ण, वृद्धराज, विष्णु, नारायण, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना। तो कांचीपुरम साउथ में था। तो वो ऐसे करता था। तो जब भगवान से बात करता था तो सारी दुनिया को पता चल गया कि यार ये तो इतना भगवान का शुद्ध भक्त, यार ये तो भगवान बात करते हैं इसके साथ, क्या खाना है क्या पहनना उसको बताते हैं, वो ऐसे करता है। तो एक बंदा आया, अरे यार कांचीपुरम जी, यार आप तो इतने भगवान के क्लोज हो, आप सब कुछ बात बात करते हो, सबको पता ही था। तो एक चीज़ पूछ दोगे? कह रहे हाँ पूछ दूंगा। और बाकी लोग भी पूछते थे भाई कि नौकरी कब मिलेगी, ये है वो है। कह रहे लेकिन एक चीज़ ना, भगवान को पूछना कि यार मैं आपके धाम जाऊंगा मरने के बाद। मैं पूछ लूंगा। तो भगवान को चामर करते करते पूछते हैं भाई, भगवान वो भक्त है ना? कह रहे हाँ है। कह रहे पूछ रहे थे मरने के बाद मैं आपके धाम जाऊंगा या कहीं और जाऊँगा? कह रहे नहीं नहीं अच्छा भक्त है, आएगा मेरे धाम आएगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में अपने लिए भी आ गया, यार मैं अपने लिए भी पूछ लेता हूँ, भगवान से बात तो हो ही रही है। तो वो अपने लिए भी पूछ लेते हैं, भगवान व्हाट अबाउट मी। चामर कर रहे थे मेरा, भगवान कुछ बोलते ही नहीं है। फिर चामर करते हैं, भगवान मेरा क्या होगा मरने के बाद? कुछ नहीं बोलते। वो और एक्साइटिंग हो जाते हैं, कहते हैं भगवान जी मेरा क्या होगा? कुछ बोलते ही नहीं है, चामर रख देते हैं साइड में। भगवान जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे बोलते रहते हो, अभी बोले आंसर ही नहीं दे रहे, क्या होगा मेरा? कह रहे नहीं आप भगवत धाम नहीं होगे। 24 घंटे तो मेरे से बात कर रहे हो आप, कुछ चाहिए हो मुझे तो बोलते हो। और इसको बोल दिया वो भगवत धाम जाएगा, वो तो कुछ सेवा भी नहीं कर रहा, और मैं तो सब कुछ छोड़ रखा है आपकी सेवा में। कह रहे बस यही फर्क है कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो और वो मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं जो आपको दिख नहीं रही। क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं। अब भगवान के दास थोड़ा होते हैं, भगवान खुद थोड़ा आएंगे, भगवान के भक्त आएंगे, उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो भगवान उसको बोलते हैं कि जाके मेरे, मतलब उसको ये नहीं बोलते, कह रहे क्योंकि तुम मेरे भक्तों की सेवा नहीं कर रहे इसलिए मैं तुम्हारे को धाम में नहीं ले जाऊंगा। तो वो कहते हैं ये पकड़ो अपना चामर, ये पकड़ो अपना मोरपंख, मैं चला, क्योंकि अब तो मेरे को जब आप मिलने नहीं, तो मैं जाता हूँ भक्तों की सेवा करता हूँ। तो जाते हैं। अब सपोज आपके घर में रूप सनातन प्रभु जी आ जाए, हाँ वो बोले मेरे को अपने घर में नौकर रख लो। अब वो क्या बोल रहे हो यार, पाप लड़वाओगे, भागो यहाँ से, नौकर रखूंगा? मैं नौकर बन के आ जाता हूँ। होगा ना ऐसे, कोई नहीं बोलेगा। मेरी भी कोई स्थिति नहीं है, मैं भी आऊंगा तो शायद मुझे भी नहीं नौकर रखोगे अब। तो उसको कोई पूरे शहर में कोई नौकर ना रखे, यार कैसे करूं भक्तों की सेवा? तो बड़ी दूर चले गए वो। अब लेकिन भगवान की चर्चा तो पूरे दूर दूर तक थी। तो इन्होंने क्या किया, भेष बदल दिया, क्योंकि अब भेष बदल दिया तो कोई पहचानेगा नहीं। तो किसी अस्तबल में इनको नौकरी मिल गई, किसी भक्त का अस्तबल था। तो फिर वहां पे भेष बदल के करते, एक दिन बारिश आती थी तो उनका मेकअप शेकअप और धोती के लिए एक ही थी, बेचारे नौकर बन के गए थे। तो इतने में मालिक आ गया, उसने देख लिया अरे ये तो कांचीपुरम है। वो तो पैरों पे गिर गया, भाई ये तो गलत पाप हो गया मेरे, मैं आपसे सेवा ले रहा था। तो ऐसे तो अब वो बेचारे वहां से भी छुट्टी होगी। अब 2-4 महीने उन्होंने जो सेवा करी, फिर भगवान के पास है, भगवान क्या करूँ, कोई सेवा ही नहीं दे रहा। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं अब मैं तुम्हारे से खुश हूँ, कराए ना, अब तुम भगवत धाम जाओ। अब आते हैं हम अपने ऊपर। हम भगवान की सेवा तो छोड़ो, भक्तों की सेवा कैसे? क्योंकि हम हैं दास। दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब सर्वेंट। सर्वेंट की हिंदी बोलो अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छी अच्छी नौकर, हाँ ये अच्छा लगेगा।
तो हम किसके नौकर हैं? प्रभु जी की। कौन से प्रभु जी? माता जी आप माला करते हो ना? माता जी आप माला कर, मीनाक्षी माता जी ना माला करते हो ना? तो ये भगवान के भक्त हुए कि नहीं हुए? आप इनके नौकर हो? हाँ बोल रहे हो, देखते हैं बाद में। कहना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कब? जब आपको देर हो रही हो। हाँ, आपके पास कोई भक्त आ गया, प्रभु जी बहुत अर्जेंट काम है मेरे को ना, और आप मेरे साथ चलो। कह भाई मेरी नौकरी है, प्रिंसिपल मेरी जान ले लेगा। अरे प्रभु जी बहुत अर्जेंट काम है, पैसे ले जा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो नौकर तो कभी ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि नौकर है वो बोल देते हैं। पर प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है। हाँ, प्रिंसिपल तो ये नौकर ना नहीं बोल सकता। अब नौकर का मतलब होता है हम स्कूल में टीचर हैं, आप प्रिंसिपल को ना बोलो, बोले कि भाई ऐसे कैसे पीरियड लेने जाना है तो जाओ। अब बोले नहीं मेरा मन नहीं है, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, मन नहीं है। जेन्युइन कारण होगा तो बोलोगे, लेकिन ना बोलने का राइट नहीं है जेन्युइनली। तो जब हम ऐसी वाली परीक्षाएं पास करते हैं तो कहने का मतलब अभी हमारे को उस लेवल पे नहीं जाना, हमारे को किस लेवल पे जाना है? स्टार्ट विद ए लिटिल स्टेप। स्टार्ट विद ए लिटिल स्टेप का मतलब क्या होता है? पूर्ण तल्लीनता से अगर नाम ले रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो माला करते क्या सोचना है? सिर्फ भगवान का नाम के बारे में चिंतन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अब कोई नहीं बोलेगा, प्रभु जी आप बोलना दोबारा मन। हरे कृष्ण अब सही है, थैंक यू। पहले कृष्णा आप अटके हुए थे, तो कृष्णा नहीं बोलना, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा। तो तल्लीनता से बोलना है। कोई बात नहीं, 7 के 8 मिनट लग जाएंगे, 9 मिनट लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नाम ही तो लेना है। लेकिन स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पीड नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी है। अब जैसे मैं बोलता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अब मेरे पास क्या होता है, कल मैं पूरा बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, और मेरी सुबह से सेवा चल रही थी, और मेरे पास इतना कम टाइम रह गया कि मतलब गिनती के 2 घंटे बचे, और 2 घंटे के बाद मेरी दोबारा सेवा थी, फिर रात को का, और मेरी माला छूटी हुई है। 2 भी नहीं थे, मतलब मेरे पास 1 घंटा 30-35 मिनट थे, मेरी 12 माला रहती। अब मुझे लगा भाई 1 सेकंड भी तू वेस्ट नहीं कर सकता, ना तू इधर देख सकता ना उधर देख सकता। मैं पूरी कंसंट्रेशन से माला करने लग गया, पूरी कंसंट्रेशन, क्योंकि एक शब्द भी गलत हुआ दोबारा आना पड़ेगा, नाम ये टाइम नहीं है, तो स्पीड भी मेंटेन हो जाती है। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, पूर्ण तल्लीनता से। चलो जब एक बार भी कर लिया, वैसे बड़ा मुश्किल होता है ऐसे तल्लीन। रीडिंग करते हो तो हम घास काट जाते हैं, कई बार आगे निकल जाते हैं। श्रवण करते भी कुछ भी कर लेते हैं, रोटी बना रहे हैं वो भी कर सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट क्या हम ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, कुछ जा रहा है उसको रिवाइज कर रहे हैं, हमने लिखा ही नहीं, हमने उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो भूलने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, और कोई झूठ नहीं बोलेगा। आज क्या बार है? संडे है ना? इसी बुधवार को आपने लंच में क्या खाया था? आपको याद है? तो फिर मंगलवार को डिनर में क्या खाया था? ये बोल दोगे तो मैं 10 दिन पहले का पूछ लूंगा, ठीक है ना? तो मतलब ऐसी चीजें 99% याद नहीं रहता कि यार 3 दिन पहले भी हमने लंच में क्या खाया था, ये याद नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ? ये याद रहता नहीं है जो बड़े मन से खाया होगा। ये याद रह जाएगा जो हमने पढ़ा, वो कैसे याद रहने वाला है? उसको तो पढ़ के लिखा भी नहीं हमने, उस पर टाइम भी नहीं लगाया। खाना खाते वक्त तो 15-20 मिनट उसको देखा, चबाया, टेस्ट लिया, आनंद आया। तो इसको भी तो पूर्ण तल्लीनता से, तभी तो भगवान अंदर जाएंगे। हम क्या करते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, तो तल्लीनता वाला वर्ड उड़ जाता है। तो जो करो उसको कोशिश करो, पर इसका मतलब ये नहीं है क्वांटिटी से कंप्रोमाइज हो। जैसे अब मैंने किसी को बोला माला अच्छे से करो, उसने पता कैसे शुरू कर दी माला, हरे कृष्ण मैंने कहा भाई 2 माला भी नहीं करेगा पूरे दिन में, ये भी नहीं है, क्वांटिटी भी रखनी है। हरे कृष्ण कृष्ण, तो सीखो। रीडिंग करते हुए भी, फास्ट रीडिंग करते हुए भी कैसे कर सकते हैं? देखो एक रीडिंग करने का भी तरीका बताता हूँ, फास्ट होती है कि आप ना पेन या उंगली साथ लेके चलो,
उससे एक तो कंसंट्रेशन बनती है और स्पीड तेज हो जाती है। और पेन या मार्कर जरूर रखना चाहिए, उसको अंडरलाइन करते रहो साथ साथ, तो जो अंडरलाइन हो जाएगा एक तरह से वो नोट्स भी बन गए आपके, ताकि उसको आप बाद में देख भी सकते हो, जरूरी नहीं हर बार लिखना ही पड़ेगा आपको। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता है और फल ये सब मिलके ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जो कोई भी चीज जो माया द्वारा ढक ली जाती है ना, वो पदार्थ बन गई। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो उससे फिर से अध्यात्म। अब समझ रहे हो, वो जो रसगुल्ला पदार्थ था वो भगवान को अर्पित करो, वो आध्यात्मिक बन गया, वो भोग बन के फिर प्रसाद आ गया। तो सारी चीजें आध्यात्मिक बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मन ही सबसे बड़ा फ्रेंड है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मन को भगवान की सेवा में लगाओगे तो फ्रेंड बन जाएगा, मन को फालतू की चीजों में लेके जाओगे, जलपा में खाना पीना ये वो दुश्मन बन जाएगा। वो तो यही दिखाता रहता है कि भाई, आप देखो इस चीज का प्रूफ करके दिखाते हैं। आप घर में रात को डिनर में, चलो पूछ लेता हूँ, आप बुरा ना चाहते या आपसे पूछ लेता हूँ, तो बता दोगे रात को डिनर में कितनी रोटी खाते हो? अगर जेन्युइनली खाते हो तो 2 खाते हो ना, लेकिन जब हम, मैं अपनी बात में बोल रहा हूँ, होता, लेकिन अगर हम कहीं शादी पे गए हैं अपने क्लोज की तो ज़्यादा खाते हैं। भी पहले गोलगप्पे भी आने दे, फिर टिक्की भी आने दे, फिर अब उसके सिर्फ गोलगप्पे टिक्की तक नहीं होते, 6 वैरायटी खाते हैं। उसके बाद फिर डिनर की थाली भी लेते हैं, फिर उसमें भी थोड़ा चावल थोड़ा शाही पनीर, उसके बाद भी नहीं रुकते। उसके बाद अगर स्वीट 3 है तो थोड़ा, अरे घर से 3 गुना ज़्यादा खा लिया। तो ये गड़बड़ी है। तो यही लिखा हुआ देखो, ये सारे माया द्वारा आच्छादित कवर्ड हो जाते हैं। तो माया हमारे को फंसाती है। मैं कहती है देखो कितना अच्छा लग रहा है, रोज तो तू 1-2 रोटी खाता है, दाल खा रहा है, आज ही तो मौका मिला है, ले ले यार, होता है ना ऐसा। तो फिर उससे आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावना मृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुख करने की विधि है। लेकिन अगर आप सोचो कि बिना भोग लगाए मैं खाऊंगा नहीं, आप खा के दिखा दो किसी शादी में, मान जाओ, क्योंकि वो भोग ही नहीं लगा होगा और सब कुछ झूठा हो चुका है। अब कैसे भोग लगाओगे? अब आपकी ना खा भी लोगे ना तो घर आते कई दिन तक गिल्ट रहेगा, यार क्या गोलगप्पे टिक्की, वैसे मैंने अपना ईमान की धज्जियां खा ली। सही बात है, तो मेरे साथ तो ऐसा है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जब मन कृष्ण भावना में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उससे क्या बोलते हैं? समाधि बोलते हैं। क्योंकि शादी में भी जा रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं? प्रसाद मिलेगा तो हम खाएंगे, तो फिर कृष्ण का चिंतन हो गया ना कि अब कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद भी खा रहे हैं, गोलगप्पे टिक्की पापड़ी भी खा रहे हैं, तो भी क्या करें? कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, फिर कृष्ण का चिंतन हो गया। अब मतलब सॉरी बुरा मत मानना, डंगरों की तरह भी नहीं खाएंगे कि अगले दिन 4 बजे भी उठना है भैया, अच्छा तो लग रहा नहीं भैया, थोड़ा कम ही कर ले, 4 बजे नहीं उठा जाएगा। क्यों? सुबह उठ के मंगला आरती करनी। आगे ना कृष्ण, हर चीज में कृष्ण घुस जाएंगे ऐसी, तो इसको समाधि बोल देते हैं। समाधि का मतलब ये थोड़ा ना ऐसे बैठो, समाधि तो चलते फिरते भी हो सकती है। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न किया गया कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। एक आदमी सोच रहा है ना मुझे डाइट कम खानी है रात को, क्योंकि अगले दिन मैं जल्दी उठ के मेरी आरती डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो क्या है? समाधि में है, और यही यज्ञ है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता और अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। तो आप जो खाना भी खा रहे हो ना, मतलब जो प्रसाद भी खा रहे हो, आप खुद सब कुछ ही कृष्ण में हो जाता है। आई बात समझ में? तो स्टार्टिंग में क्या लिखा था? यज्ञ करने वाला या यज्ञ करवाने वाला, यज्ञ की सामग्री सब के सब पुण्य, सब कुछ उसका भी उदाहरण। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आज तो मैंने पूरा डिटेल में बताया। यस माता जी। नहीं, बच्चों के लिए तो, बच्चों को तो पालना ही है ना अच्छे से। नहीं कोई वहीं से शुरू करेगी बस। हाँ, ऐसा कुछ नहीं।
जानबूझ के प्रजल्पा नहीं करना कि एक हाथ में माला एक हाथ में फोन है, ये हो गया जान। एक हाथ में माला है, क्रिकेट मैच चल रहा है, अच्छा हरे कृष्ण, ओ तेरी छक्का, हरे कृष्ण, ये भी नहीं करना। जानबूझ के सब्जी नहीं लानी, एक हाथ में माला सब्जी भी बना लेते हैं, चलो 20 मिनट बच जाएंगे, ऐसे काम नहीं करना। मेट से सारा काम भी करवा लो, माला करते आपको लगता है वो आज की माला तो टाइमली खत्म हो गई, तो सारा तो काम करते करा आपने, तो पूर्ण तल्लीनता कैसे है? बच्चा तो रोएगा तो उसको तो देखना ही देखना है, लेकिन बाकी चीजों पे काम करना है ना। हाँ कर सकते हो, मतलब क्योंकि नेचुरली टाइम क्रंच रहता होगा, है ना, तो कर लिया करो, लेकिन कोशिश कराओ कि भाई ध्यान शब्द को सुनने में रहे। हाँ कोने में बैठ जाओ ताकि ज़्यादा अट्रैक्शन से बचे। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। आपको इतना बोलना है कि आपके कान तक आवाज़ जाए, जाना कंपलसरी है, कंपलसरी बोल रहा हूँ, नॉट विलिंग। इतना बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, क्योंकि अपने कान सबसे नज़दीक है, पड़ोसी तक भी ना जाए चाहे, लेकिन आप और चले भी जाए तो चले जाए, उसने उठना होगा उठ जाएगा, हरे कृष्ण। मैं तो ऐसे बोलता हूँ दुनिया की किसी भी जगह पर, अनटिल अनलेस कोई मेरे साथ बिल्कुल सोया हो तो भी मैं इतना तो हल्के बोलूँगा मेरे कान, हरे कृष्ण। हाँ इतना भी बोलोगे हरे कृष्ण तो भी आपके कान में जाए, कान में जाना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ तो तभी होगा यहाँ से सामग्री निकलेगी, यहाँ से हवन कुंड में जाएंगे, नहीं तो यज्ञ कैसे बनेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इस्कॉन में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, इस्कॉन के बाहर का बंदा बोलेगा, या कोई नया होगा तो बोलेगा। यस सिमरन माता जी, कुछ पूछना है? पूछ रहे हो आप कुछ? हाँ एक ही बात है, इंग्लिश और हिंदी का। हाँ यस, वो आदमी वहां पे ना रह के कहीं और चला जाता है। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं शादी में हूँ, ठीक है, और मैं चिंतन कर रहा हूँ भगवान का, दुनिया को लग रहा है मैं ऐसे बैठ के शायद डीजे का गाना सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, तो मैं ट्रांस में ही हूँ। यानी कि समाधि का मतलब सिंपली ये वाली समाधि नहीं होता कभी भी। जिस टाइम पे आप भगवान का चिंतन कर रहे हो वो समाधि है, वो ट्रांस ही है, वन ऑफ द सेम थिंग। आध्यात्मिक जगत में हो ना आप, क्योंकि अगर भगवान को याद कर रहे हो तो आप मटेरियल के अंदर आध्यात्मिक लेके आ रहे हो, तो आध्यात्मिक लेके आ रहे हो तो ट्रांस है। हालांकि बड़ी ऊंची स्थिति होती है, हमारी स्थिति वो नहीं है। ऊंची समाधि पता कैसे होती है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं समाधि में कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर हरे कृष्ण चल रहा होना चाहिए बात करते करते भी, तो मैं समाधि में हूँ। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैंने आज भी क्लास में बताया था कि एक गुरबानी आती थी, मैं पहले कभी सुना करता था जब इस्कॉन में नहीं जुड़ा था, श्वासादि माला नाल करता रहूं तेरा नाम, ऐसा था। तो हर सांस में नाम तभी निकलेगा, अब काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस है, तभी हमेशा हम समाधि में रह सकते। हाँ बिल्कुल 100%, वो है ही ट्रांसीडेंटल। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, इसके ऊपर ना मैं सेशन देता हूँ कॉलेज में जाकर, उस सेशन का नाम होता है माइंड योर माइंड। तो उसमें हम बताते हैं कि ये गूगल पे चेक कर लेना, गूगल पे स्टडी आई हुई है, मेरे को स्टडी का नाम नहीं पता, लेकिन आप देख लेना साउंड वाइब्रेशन की क्या चीज। पानी के ऊपर रिसर्च करेगी, उस पानी के ऊपर रिसर्च करके ना उसके ऊपर मंत्र बोलेंगे, तो जो पानी फैला हुआ था ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया था, शेप चेंज हो गई, और जब पानी के सामने गालियां दी गई तो वो तितर बितर हो गया, इतनी ऑकवर्ड सी शेप हो गई। तो ट्रांस तो आध्यात्मिक वर्ड है ना, स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, पानी पे भी उसका असर पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो पानी भी समाधि में जा सकता है, अदरवाइज वो पानी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। कोई भी होगा, मैं नहीं जानता। वो तो मुझे देखो इस केस स्टडी के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि ऐसे तो लाखों केस स्टडी होंगी ना, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर केस स्टडी, बट इसका एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। जैसे मीराबाई हमेशा भगवान के चिंतन में रहती थी, उनको जहर का प्याला पिलाया गया, उन्होंने पी लिया, उनको कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि वो शुद्ध भक्त थी। अभी तो हम शुद्ध के शाह पे भी नहीं पहुंचे, शाह क्या नाम भी नहीं पहुंचे। तो जिस अगर उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हम चलते फिरते समाधि में हो सकते हैं, जैसे जितने आचार्य हुए हैं चलते फिरते समाधि। ठीक है, थैंक यू। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी जी की जय, श्री श्री गौनिताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। ये बंद करना रिकॉर्डिंग। क्या डाउट? अच्छा एक मिनट रुको, मैं अकेले में ले लेता हूँ रिकॉर्डिंग में।